Hey class 5, in today's video we will read about a legendary movie. What are the techniques which are used in that science fiction of Jurassic Park movie which has been released in 1993. Because I was quite small at that time, I was in standard 3. So, okay, it starts with the... What's that? Lex and Tim shiver with fear at the sight of the monster coming out from among the trees. It stands about 25 feet high and 40 feet long from the nose to tail. It stands about 25 feet high and 40 feet long from nose to tail. It has enormous box-like head. It lets out a defending roar that leaves their ears ringing. Then it notices their SUV. It snarls at the occupants of the car. The occupants are Rex and Tim. So, snarls means to have a watching just like this. So, the dinosaur is a Tyrannosaurus Rex. Lowers its head, pushes the vehicle. Once again, then again, and snarling and growling constantly. Clearly, it wants to topple the vehicle. Lex turns on the torch in her hand in right. The beam of the powerful flashlight is aimed into the Tyrannosaurus Rex eyes. For a moment, it is blinded and it pushes, but just the screams of the terrifying pair, angering the Tyrannosaurus Rex even more. It lifted an enormous cloud of food and stamped on the glass roof, which constantly caves in. So now we are going to read about the technicalities which are used in this movie. So here we go. And now we are going to read the chapter Jurassic Park Making the Film. These I will make another video of the book exercise. In that I'll solve it. So, what is that? Lex and Tim shiver with fear at the sight of the monster. It's the same scene which we had just seen in the intro. Lex and Tim, these are two children of John Hammond's. They are grandchildren. They shiver with the fear. What's that? What's that means? When they see the dinosaur, they say, what's that? They shiver. Shiver मतलब वो कांपने लग जाते हैं, धूजने लग जाते हैं डर से. At the sight of the monster, monster को देखकर. Coming out from among the trees, जो पेड़ों में से एकदम से monster जैसा जो dinosaur आया ना, वो. It stand about 25 feet high. उसका जो height है वो 25 feet है. और उसकी जो लेंथ है, उसकी लंबाई जो है वो 40 feet थी, नोज से लेकर टेल तक. It has an enormous box-like head. Enormous means very big head. It is just like a box. It lets out a defending roar that leaves their ears ringing. He just roaring, बहुत तेज दहाड़ने की आवाज आती है, आवाज करता है वो कि उनके जो ears हैं, लेक्स और टिम के जो ears हैं, वो ring करने लग जाते हैं. Then it here stand for the dinosaur. It noticed their SUV. स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो होता है, उनकी जो गाड़ी होती है ना, वो SUV. It snarls means just looking at with terror. So just make them to terrorize. Snarls at the occupants of the car. Occupants means the two children which are sitting in the car. Snarls at the occupants of the car, just looking at, showing his teeth. The dinosaur, or Tyrannosaurus Rex, is the species of that dinosaur, na? It's also a carnivore. So, a Tyrannosaurus Rex lowers its head. सर को नीचे करता है. Pushes the vehicle. जिस vehicle में बच्चे बैठे हैं उसको push करता है. Once again and again, snarling and growling constantly. Clearly, it wants to topple the vehicle. Topple मतलब उल्टा गिरा देना उसको. Rex turns on the torch in her hand. Rex से गलती से torch on हो जाती है. The beam of powerful flashlight is aimed into Tyrannosaurus eyes. Rex eyes. For a moment, it blinded and it pauses. थोड़ी देर के लिए वो
बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, जैसे रोशनी पड़ती, फ्लैश पड़ता है लाइट का उसकी आंखों में, लेकिन फिर बट जस्ट देन द नेक्स्ट मोमेंट इट स्नार्ल्स पुशिंग द व्हीकल अगेन, फिर से व्हीकल को पुश करने लग जाता है, वो चाहता है कि वो बच्चे बाहर आ जाएं। द एयर इज फिल्ड विद स्क्रीम्स ऑफ टेरिफाइड पेयर, उनके चिल्लाने की आवाज से भर गई है पूरी हवा। एंगरिंग द Tyrannosaurus Rex, और वो भी गुस्से में है बहुत। इट लिफ्ट एन enormous cloud foot and stamped on the glass roof, which instantly caves in. That was a clipping from Jurassic Park. दैट वॉज अ क्लिपिंग फ्रॉम जुरासिक पार्क। ये उस जुरासिक पार्क मूवी की क्लिपिंग थी जो 1993 में आई थी। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचरस फिल्म थी बेस्ड ऑन माइकल क्लैरेटन स्टोरी। ये इनकी स्टोरी लिखी हुई थी, राइटर थे इसके। दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीफन स्पीलबर्ग। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे स्टीफन स्पीलबर्ग। जुरासिक पार्क इज अ लैंडमार्क फिल्म इन द वे इट यूजेस कंप्यूटर इमेज। एक बहुत ही अच्छी लैंडमार्क थी, बहुत मतलब एक लेजेंड थी ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि इस तरह से कंप्यूटर से इमेजेस यूज की थी। इट won several Academy Awards, इसको कई अवार्ड्स भी मिले थे। It was so successful that several sequels were made. After that, Jurassic Park in 1993, many other films were based on Jurassic Park and the dinosaurs had been made. Set in a dinosaur park created by billionaire John Hammond. There is a park, John Hammond का एक पार्क था। The story is about a group of scientists. इसकी स्टोरी में क्या था, कुछ साइंटिस्ट थे who visit the park to check if it's safe. वो उस पार्क में जाते हैं। हैमंड्स के ग्रैंड चिल्ड्रन जो लेक्स और टिम, जो अभी आपने वीडियो में देखे थे, आर ऑल्सो अमॉन्ग द विजिटर्स इन द पार्क। इट इज सून discovered that someone wants to steal dinosaurs egg. ये थोड़ा सा मूवी की स्टोरी है कि कोई लोग चाहते थे कि डायनासोर ने जो एग्स ले किए हैं उन एग्स को स्टील कर ले, चुरा ले। एंड टू डू दिस द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द पार्क हैज बीन स्विच्ड ऑफ। जो सिक्योरिटी सिस्टम को स्विच ऑफ करना पड़ा पता लगाने के लिए कि कौन चुराना चाहता है एग्स को। दिस पुट एवरीवन इज डेंजर। जब सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर दिया गया तो जो डायनासोर थे वो बाहर निकल गए। दिस पुट एवरीवन इन डेंजर, जिसकी वजह से सब कुछ खतरे में पड़ गया, सबकी लाइफ। किल्ड बाय डायनासोर्स इन द पार्क, सो देयर वाज अ चांस दैट दे माइट बी किल्ड। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म वाज स्क्रिप्टिंग द डायनासोर। सबसे बड़ा चैलेंज था इस मूवी को बनाने में, वो था डायनासोर को बनाना। डायनासोर को कैसे बनाए, वो तो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए। दो paleontologists have been studying dinosaur. So what's the meaning of paleontologist? It means the researchers who study about the fossils, the scientists who study about the fossils of the animals. जो अवशेष कुछ होते हैं जानवरों के, उनको लेकर स्टडी करते हैं, उस पर वो कार्बन-14 डालते हैं, उससे पता करते हैं वो कितना पुराना है, and many other things. तो Paleontologists have been studying dinosaurs for years. Nobody really knows how much they moved or sounded. Spielberg made sure that this team included scientists who had studied dinosaurs. तो जो डायरेक्टर थे स्पीलबर्ग, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट को भी इंक्लूड करता हूँ जो सच में डायनासोर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। To create the dinosaurs, mechanical puppets or robots of the different types of dinosaurs were developed. कुछ रोबोट्स बनाए गए, कुछ पपेट्स बनाए गए डायनासोर जैसे। These robots looked and moved like animals. इनकी जो डायनासोर की जो शेप थी, वो जो फॉसिल्स उनको मिले थे, जो कहीं पे फुटप्रिंट्स मिले थे डायनासोर्स के, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका जो ढांचा है, जो रोबोट्स है, वो तैयार किए। द साइंस ऑफ रिक्रिएटिंग एनिमल मूवमेंट विद रोबोट्स इज कॉल्ड एनिमेट्रॉनिक्स। और वो साइंस जिससे एनिमल्स की मूवमेंट को क्रिएट किया जाता है उसको एनिमेट्रॉनिक्स कहते हैं। देन अ कंप्यूटर मेड देयर लिम्स मूव एज डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट। और जो उनके लिम्स थे, हाथ पैर जो थे डायनासोर्स के, जो पपेट्स थे, जो रोबोट्स थे, उनके लिम्स को मूव करवाया गया जिस तरह से साइंटिस्ट ने बताया था। एंड द प्रोग्रामर्स आफ्टर दैट द मॉडल्स वर फिटेड विद अ फॉर्म रबर स्किन। उसके बाद उन मॉडल्स के ऊपर रबड़ की स्किन लगाई गई। ऑन द सेट स्पेशल इफेक्ट्स गेव अ रियल लाइफ अपीयरेंस टू ऑल देयर एक्शंस। जो सेट था उसकी एडिटिंग और सब कुछ इस तरह से थी कि उनको रियल
अपीयर कर रहे थे, वो रियल दिखाई दे रहे थे. द बिहेवियर्स ऑफ द डायनासोर इन द फिल्म वर मोस्टली बेस्ड ऑन दोज ऑफ मॉडर्न डे एनिमल्स. इन फैक्ट आजकल जिस तरह से कार्निवोर एनिमल्स बिहेव करते हैं ना, उस तरह से उनका बिहेवियर बताया गया कि वो बहुत जल्दी से एंग्री हो जाते हैं, दे जस्ट ग्राउंड एंड ऑल दैट. स्नैल्स. In fact, even the dinosaur sounds. Now, what's the task? The sounds कैसे लेके आए डायनासोर की? They were mix of the actual animal calls. Animals की आवाज थी, animals के calls थे वो. Of the tiger, elephants and alligator, penguin and even a dog's bark. इतने सारे animals की आवाज को एक साथ रिकॉर्ड किया गया, फिर उसको एक साथ ही प्ले किया गया और इस तरह से डायनासोर की वॉइसेस क्रिएट हुई. When Spielberg saw the first computer animation of the Tyrannosaurus Rex chasing a herd of small dinosaur, जब पहली बार इसका एक सीन तैयार हुआ और उसको जब डायरेक्टर स्पीलबर्ग ने देखा तो he was stunned, वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए that the robots look so real, कि वो जो रोबोट बनाए गए थे एनिमल्स के वो बिल्कुल असली दिख रहे थे. It was a special moment in the history of filmmaking. मूवी बनाने की, फिल्म मेकिंग की हिस्ट्री में ये बहुत स्पेशल मोमेंट थी. दिस क्वालिटी ऑफ एनिमेट्रॉनिक्स हैड नेवर बीन अचीव्ड. और ये जो क्वालिटी थी जो कि जुरासिक पार्क मूवी में यूज की गई थी, इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाया उसके बाद में. तो ये सबसे पहले था कि एनिमेट्रॉनिक्स मूवी में यूज किया गया था. Next we have the last paragraph. The sound mixing and editing in the film were also quite special. जो साउंड की मिक्सिंग की गई थी, एडिटिंग की गई थी, वो भी काफी स्पेशल थी. उसमें भी बहुत स्किल्ड लोगों ने काम किया. जुरासिक पार्क वाज द फर्स्ट टाइम टू यूज डिजिटल सराउंड साउंड. और ये ऐसी मूवी थी जहाँ पे सराउंडिंग्स के जो साउंड थे वो डिजिटल यूज किए गए थे. Researching and experimenting patiently resulted in the film techniques that have made the making of Jurassic Park legendary. So बहुत ज़्यादा रिसर्च, एक तो डायनासोर्स के फॉसिल्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ज़्यादा पेशेंटली वर्क किया लोगों ने. उसका रिजल्ट था ये मूवी जुरासिक पार्क which has been released in 1993. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एक बार इसके टर्म्स देख लेते हैं. SUV, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल. स्नैर्स, ग्रोल्स एंड शोइंग टीथ इन द थ्रेटनिंग वे, दांत दिखाना और आंखों से गुस्सा करके दिखाना. टॉपल, मेकिंग समथिंग समवन टू फॉल डाउन, गिरा देना, किसी चीज को उल्टा कर देना. क्यावसिन, फॉल्स इनवर्ड, अंदर की तरफ. अकेडमी अवार्ड, नेम ऑफ द अमेरिकन अवार्ड गिवन टू द ऑनर ऑफ द अचीवमेंट इन द फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग. Squeals, film that continue the sequels. Okay, sequels, sorry. He films that continue the story begin in a previous film. पहले की स्टोरी में जो आई है वो दूसरी स्टोरी में, जैसे बाहुबली 1 आई थी, उसका सेकंड पार्ट आया था, इस तरह से. Surround sound, system of reproducing sound using many speakers placed around the person listening in order to produce or more realistic sound. So have a nice day and don't forget to like and subscribe the channel. Have a nice day.